Hello, myself Avijit Roy. Let us continue with the previous session, right? We were discussing about the electrical field and forces. तो एक आगे और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे just if you read the question, consider three charges. यहाँ पे मेरे पास तीन charges है. Now each equal to one coulomb, right, at the vertices of an equilateral triangle of length L. What is the force on the charge Q with the same sign as Q, okay, placed at the centroid of the triangle? Okay, fine. So let's see this. So let us draw a diagram first of an equilateral triangle. As it is being told, right, it is an equilateral triangle. ये एक equilateral triangle है. तो equilateral triangle में हम ज़रा आते हैं पहले और equilateral triangle बनाते हैं. Let us draw an equilateral triangle first, okay? Now, it has got three charges, Q1, Q2, Q3, but all the charges are same and the charges are nothing but of 1 coulombs, right, at the vertices of an equilateral triangle of side L, right? So I'm putting it L, right, equilateral triangle. Okay, what is the force on the charge Q with the same sign as Q, right? So that means this is my Q, so this is Q, this is Q, and this is Q, right? So all these three sides, all these three corners, basically vertices of a triangle, have got Q, and you are now placing another charge Q inside, right, placed at the centroid of the triangle. So you have to understand what is the centroid. So let us drop a line, right, from the center. Now being an equilateral triangle, it will bisect the base also, right? Being an equilateral triangle, it will bisect the base, come in this way and come in this way, and you will find this is what is my centroid, and this centroid has got Q also. यहाँ पे बोला है with the same sign Q, तो same sign, वो sign को आप same रखिएगा. हमने भी उस sign को बिल्कुल same रखा है Q, right, with a positive. So all of them I am considering it as positive. सारे को सबको positive लेके काम कर रहे हैं हम. और इस जगह पे अगर आप right जाके यहाँ पे खड़े हो जाते हो, if you stand over here, right, कितना force आपको महसूस होगी, right? So this is the question, right? कितनी force you can feel, how much force you can feel, okay? So this is what we are going to do and what we are going to study over here, right? To analyze this, we have to redraw this figure. This figure is only for understanding the question, right? So let us see कि हम इस figure को और अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से कैसे implement कर सकते हैं, right? तो इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इस फिगर को और एक बार बनाते हैं, और इस फिगर को बनाने के पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा आप लोगों को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स थोड़ा सा समझाना चाहते हैं. देखिए, ये नॉर्मल केस में वी कंसीडर दिस एज माय एक्स एंड वाई एक्सिस. ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है. दिस इज द नॉर्मल फिनोमिना. नाउ व्हेनेवर यू हैव एनी फोर्स दैट गोज इन द एक्स डायरेक्शन, वो एक्स डायरेक्शन में हो या फिर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो, वाई डायरेक्शन में हो या फिर नेगेटिव वाई डायरेक्शन में हो, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वहाँ पे है, राइट? प्रॉब्लम उस जगह पे होगी जहाँ पे आपको आपके जो फोर्स होंगी वो शायद बीच में कहीं पे आ जाए, तब होगी प्रॉब्लम, राइट? अब बोलोगे सर ये बीच में आ गई तो कैसे करेंगे? सो जब ये फोर्स बीच में आ जाती है, यू हैव टू कंसिडर एन एंगल. वो एंगल आपका काम होगा फिगर से डिड्यूस करनी है. ये वाली वो एंगल है ना, ऊपर वाली है, वट एवर इट इज, ओके? एंड देयरफॉर आप इस एंगल को एक बार मिलने के बाद, राइट, आप इसके दो कंपोनेंट्स को निकालोगे, वन इन द एक्स डायरेक्शन, अनदर वन इन द वाई डायरेक्शन. तो एक इस दिशा में जाएगी जो मेरी एक्स दिशा में होगी, और मैं आपको बताऊं जो भी इस थीटा के साथ जो लाइन लगी होगी, दैट मीन्स दिस लाइन विच इज कनेक्टेड टू थीटा, जो थीटा के साथ लाइन लगी होगी वो हमेशा आपकी
कॉस के साथ आएगी, सो दिस विल रिप्रेजेंट एफ कॉस थीटा। और जो थीटा के जो लाइन इस थीटा के साथ नहीं रहेगी, सो दिस ये जो लाइन है इसको थीटा के साथ कोई लेना देना नहीं है, एंड दिस इज ऑलवेज योर साइन थीटा। तो ये ट्रिक है, याद रखना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास टू द लास्ट क्लास, ओके, टू द लास्ट सेशन रादर, ओके। हमेशा याद रखना जो लाइन आपके थीटा के साथ लगी हुई है दैट इज ऑलवेज कॉस, और जो नहीं लगी है दैट इज ऑलवेज साइन। सो ये दो पार्ट है, दिस इज द मेन थिंग वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट इन द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ओके। लेकिन ये होती कैसे है, राइट, हाउ इट कम्स, राइट, इस चीज को जानने के लिए नाउ देखिए जरा एक बार, इस चीज को जानने के लिए आपको एक चीज जानना पड़ेगा, एंड दैट इज इफ यू हैव अ वेक्टर ए एंड बी, सिर्फ वेक्टर रहने से नहीं होगी, उनकी दिशा को देखनी पड़ेगी, उनकी डायरेक्शन को देखनी पड़ेगी। आप देखिए इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एक ही तरफ से जा रही है, एज इफ दे एक सिंगल यूनिट है, राइट, इट इज गोइंग इन दिस वे। लेकिन जो भी उसकी उल्टा जाएगी, ऑपोजिट टू दैट विल बी कॉल्ड एज ए रिजल्टेंट। एंड हियर अगर आप ठीक से देखोगे तो सी उल्टी जा रही है कंपेयर टू ए एंड बी, एंड देयरफॉर आई से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज नथिंग बट माई सी वेक्टर। सो इस तरह से हम इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। यही फिनोमिना इस डायग्राम में भी यूज हुई है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से यूज हुई है, तो थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूं उस चीज को भी। नाउ इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, नाउ दिस इज माई फोर्स एंड दिस इज माई फोर्स विच इज द रिजल्टेंट। तो डेफिनेटली एक ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी, तभी तो बोलेंगे दिस प्लस दिस इज नथिंग बट माई एफ, okay, so then only we can say A, B and F, so F vector is nothing but my A vector plus B vector। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही काम किया है, लेकिन सिर्फ एक फर्क है, ये being a vector मैं इसको पुश कर दिया हूं, राइट, so that it comes to the axis, ताकि वो एक्सिस में आ जाए। और इस तरह से हम किसी भी चीज़ के क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर वेक्टर फोर्स या फिर वेक्टर बोलिए आप, जो हवा में रहती हैं, इन बिटवीन, नॉट इन द एक्स वाई, नॉट इन द एक्स एक्सिस और इन द वाई एक्सिस, बट रादर इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो उस जगह के लिए ये दो हिस्से में तोड़ के आप इससे काम कर सकते हैं आप इस तरह से, राइट। तो अगर मैं अब इफ आई गो फर्दर एंड लेट अस ड्रॉ, अगर मैं उस ट्रायंगल को बनाता हूं, सो लेट अस ड्रॉ दैट ट्रायंगल, राइट। तो इस ट्रायंगल को बना रहा हूं मैं, राइट। इफ यू ड्रॉ दैट ट्रायंगल, नाउ लुक एट दिस इज माय क्यू एंड दीज आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ओके। एक सेंट्रॉइड लेके आया, यहाँ से भी लेके आए एंड यहाँ से भी ले आए, एंड ऑल ऑफ देम हैज गॉट अ चार्ज Q। सो दिस इज Q and this is Q and this is also Q. So if you look at these two, and this is my L and this is my L and this is my L. So if you look at these two, तो what I will say is, now जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके जो भी फोर्स है, this is positive, this is also positive, और आपका पॉजिटिव यहाँ पे एक रिपल्शन होगी, और ये जो मेरी रिपल्शन की डायरेक्शन होगी वो इस तरह की होगी। सो लेट अस मार्क इट एज A, लेट अस से दिस एज B एंड लेट अस से दिस एज C। तो अगर मैं A B C की बात करता हूँ, तो ये जो मेरी फोर्स है, ये फोर्स मेरी है F C से लेके, यू कैन कॉल दिस एज O। सो आई एम इफ यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, राइट, सो ये जो फोर्स है, तो यू कैन से यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, O से कहाँ जा रहे हैं हम, C तक। सो दिस इज द डिस्टेंस आई नीड, सो लेट अस से दिस एज RC तक, ओके। अब बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से अब मैं इस O को देखूंगा और इस फोर्स को देखूंगा जो मेरी B में है, और जो मेरी B में है दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, और आपको पता है सर ये रिपल्शन होगी, और ये मेरी रिपल्शन की डायरेक्शन है, एंड दिस इज व्हाट इज माई FOB। सो लुक एट FOB, right, this is your FOC, and exactly in the same way this is the repulsion, right, again a plus and plus repulsion, और यहाँ पे भी आपको मिलेगी क्या, FOA। सो इस तरह से मेरे पास तीन वेक्टर्स आ गए, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तीनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो एंगल 120 की है, बिकॉज यू नो एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 इक्वल स्पेसेस में है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट। तो ये तीनों जो हैं वो एकदम बिल्कुल क्या हो जाएगी कि एकदम इक्वली स्पेस्ड हो जाएगी, एंड द एंगल बिटवीन देम विल बी एग्जैक्टली 120 डिग्री, एंड आप लिख सकते हैं इसको 120 डिग्रीज ईच, ओके।
लेकिन हम इसको कंपोनेंट में कैसे तोड़ेंगे, दैट इज व्हाट इज द मेन पार्ट. ओके, नाउ हाउ विल यू ब्रेक इट अप इनटू कंपोनेंट्स. ओके, बिफोर दैट लेट मी टेल यू, अगर आप FOA निकालना चाहते हो, दैट इज दिस. ओके, दैट इज दिस OA रिपल दिस वन. ओके, सिंपल सर, 1/4 pi epsilon, right? But the charge over here Q, and this is also Q, so this is Q square upon. Now, being an equilateral triangle, तीनों side equal, right? Centroid equal. Okay, so centroids will be equal. सबसे and centroids bisect by the ratio of 3:1. ओके, 2:1, सॉरी 2:1. सो उस तरह से मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मिल सकती है, बिकॉज दिस इज L/2 एंड सो ऑन. दैट इज अ ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन. यू कैन ऑल्सो यूज दिस कंसेप्ट. दिस इज माई 30 डिग्रीज. ओके, एंड यू कैन ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हेयर. वो सब कंसेप्ट भी आप लगा सकते हो, बट दैट इज अ ज्योमेट्रिकल पार्ट, एंड दैट इज व्हाट इज R स्क्वायर. एंड इंटरेस्टिंगली, this part, this thing and this thing, these three are equal, right? And therefore मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि FOA बराबर होगी FOB की और बराबर होगी FOC की. सो ये हमारे न्यूमेरिकल को बहुत छोटा कर देगी, ये हमारे न्यूमेरिकल को बहुत स्मूथ कैलकुलेशंस में मदद करेगी, बिकॉज ऑल द फोर्सेस आर इक्वल एंड लेट अस कंसीडर दैट फोर्स टू बी F, राइट? और इसको आप F पकड़ लीजिए स्ट्रेट अवे, राइट? और जब आप उसको F पकड़ लेंगे तब अब आप इसको रेजोल्यूट कर सकते हो. सो वन वेक्टर इज इन दिस वे. नाउ another one I have taken it in this way. I have not taken it, आया है ऐसा, राइट? और जो और एक है वो ऐसे है. सो ये है मेरे पास 3 वेक्टर्स. और अभी मैंने आपको डिस्कस किया, हमारी प्रॉब्लम बहुत आसान हो गई क्योंकि तीनों की फोर्सेस जो हैं वो सेम हो गई हैं, बीइंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. और दोनों के बीच में एंगल इज जैसे बात हुई थी 120 डिग्री, 120 डिग्री. सो दिस इज ऑलरेडी 90 डिग्रीज. सो इफ दिस इज 90 डिग्रीज देन दिस इज डेफिनेटली, इफ इट इज 120, सो दिस इज 90 डिग्री. तो कितनी हो गई? सो 120 माइनस ऑफ 90 डिग्री, दैट विल गिव राइज टू 30 डिग्रीज. सो यू कैन स्ट्रेट अवे राइट ओवर हियर, दिस इज 30 डिग्रीज, दिस इज 30 डिग्रीज, एंड दिस F हमारी कोई इशू नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे लाई करती है. सो हमारे लिए वो प्रॉब्लम की बात नहीं होगी. नाउ लेट्स ब्रेक इट अप. नाउ जैसे अभी कंपोनेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल वही वाली कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पे भी हम. लेट्स ब्रेक इट अप. सो लुक एट दिस, इसकी बात कर रहे हैं F cos 30 जो ऊपर जा रही हैं, F sin 30. एग्जैक्टली इन द सेम वे इसका भी एक इधर F cos 30. याद है ना, अभी बोला था जो भी लाइन एंगल के साथ रहेगी दैट विल ऑलवेज कॉस. सो हमारे साथ ये रेड लाइन एंगल इस थीटा के साथ है तो कॉस. जो नहीं है दैट इज ऑलवेज साइन, दैट इज F sin 30. नाउ बहुत क्लियरली दिख रहा है, दिस विल कैंसल आउट. एक्स कंपोनेंट नहीं रहेगी. सिंपल सर, एक्स कंपोनेंट आपका पास नहीं है. सो द ओनली कंपोनेंट दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इज, राइट, जस्ट फॉलो द डायग्राम, जस्ट फॉलो द डायग्राम. नाउ द ओनली कंपोनेंट दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इज दिस, ऊपर वाला एंड नीचे वाला. तो दिस F is remains, sorry, so this F remains, hold on please. So this F remains, ये F नीचे की, ये F बच गई और ऊपर की. So if you look at the x axis, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, if I write x axis, so आप देखो आप x axis में कौन कौन थी. x axis में बड़ा क्लियर बात थी कि it is F cos 30 पॉजिटिव दिशा में और एक cos 30 नेगेटिव दिशा में. सो माइनस ऑफ F cos 30 एंड दैट विल गिव राइज टू सर 0. तो इसका मतलब x कंपोनेंट में कुछ नहीं है. नाउ रहा कौन और एक रहा y एक्सिस, राइट? सो अगर मैं y एक्सिस की बात करता हूं, इफ यू टॉक ऑफ y एक्सिस में 2 कंपोनेंट ऊपर जा रही हैं और एक नीचे के तरफ. सो दैट मीन्स व्हाट कैन आई से? सो दैट मीन्स इन फॉर दिस आई विल से नथिंग बट, बोलिए सर, F नीचे की ओर माइनस 2F sin 30, okay, 2F sin 30, and here you will find it is F minus F, okay, and there is 2 basically, and sin 30 is half. 2 कट गई, FF भी कट गई, and the result is 0. That means what we find, X component मेरी पहले ही 0 थी
और अभी मेरी y कंपोनेंट भी 0 हो गई। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। सो दैट मीन्स जैसे शुरू में मैंने बात किया था कि अगर आप उस ट्रायंगल के बीच में जाके खड़े हो जाते हैं और कितनी फोर्स लगती है आप पे, सेंट्रॉइड थी वो, तो यू विल फाइंड नो फोर्स। देयर इज नो फोर्स इन द x कंपोनेंट, देयर इज नो फोर्स इन द y कंपोनेंट, एग्जैक्टली बैलेंस्ड फोर्स। ओके, लेकिन ये तभी मुमकिन होती हैं जब आपके क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज दी रहती हैं, और वो चीज मैं आपको दिखा दूं, और वो चीज है ये। कौन सी चीज है वो? ये रही सर। ये तभी मुमकिन है जब आपको ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी। जब आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगी, देन ओनली इट इज पॉसिबल कि आप जब बीच में उस ट्रायंगल के खड़े होंगे तो वो ट्रायंगल में आपको कोई फोर्स नहीं लगेगी, राइट? और वही जस्टिफिकेशन हम अभी आपने किया है, राइट? सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली। नाउ एनसीईआरटी वगैरह के बुक्स में ये सॉल्यूशन कुछ स्टेटमेंट वाइज सॉल्व किया गया है, दैट आई डोंट प्रेफर। वो मुझे पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है उसके पीछे कारण है। देखिए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैथमेटिकली हम फोर्स को ऐसे नहीं बोल सकते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, टूवर्ड्स ए बी। नहीं सर, दिस इज टेक्निकल सर, एंड वंस इट इज टेक्निकल ना, इट शुड हैव अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट टू इट। और उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को देने के लिए, राइट, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स से सबसे अच्छी न्यूमेरिकल निकल के आती है। और बहुत अच्छी तरह से आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पॉज कर करके आप देखिए, अपने पेन किताब सामने रखिए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उस चीज़ को आप लिखने की कोशिश करें, ठीक है? और पॉज कीजिए, पॉज करके वो चीज़ लिखिए आप, राइट? ईच एंड एवरी स्टेप, राइट, यहाँ पे है। If you open your NCERT book, you will find only 2 to 3 lines. Ye symmetrical, over. But what is the real justification? The real justification lies over here, right? So I will request you कि ये video go through the entire video, right? All right. Now let us do one more. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जहाँ पे 3 चार्जेस हैं, राइट? लेकिन चार्जेस अब सेम नहीं है। अब यहां पे Q और माइनस Q है, प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज? व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज? तो ईच चार्ज की फोर्स निकालनी है। सो दिस इज द फिगर, ओके, दिस इज द फिगर। तो इस फिगर को अगर आप थोड़ा सा इनहेंस करके या फिर थोड़ा सा अच्छी तरह से मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूं, राइट? नाउ लेट अस सी दिस। आई हैव गॉट नाउ I am बेसिकली फोर्स तो निकल जाएगी, किसी की भी निकल जाएगी फोर्स। लेकिन पता है, मैं आपको ये मैंने कोशिश कर रहा हूँ समझाने का कि देखिए ये फोर्स निकलेगी, लेकिन इस फोर्स को निकालने के लिए जो वेक्टर की रेजोल्यूशन कर रहे हैं ना हम, वो बहुत ज़रूरी है। वेक्टर को जो हम तोड़ रहे हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है सीखना। और इस काम को करने के लिए जैसे बात यहाँ पे फिगर है, so that is what is your minus Q, this is your plus Q, and this is your plus Q, okay? And this is an isosceles triangle, isosceles equilateral triangle. तो चलिए सर A मान लेते हैं, A है, okay? तो let us see first of all the vector. Let us mark it. Mark this as let us take this as ये मेरी point A का बात कर रहा हूँ मैं. Let us take this as B and let us take this as C. So ये मेरी 3 पॉइंट है, ओके? और अकॉर्डिंगली इस पॉइंट्स को एनालिसिस करेंगे। चलिए वेक्टर की बात करते हैं पहले। ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी, और ये मैं ऐसे बना दूंगा, और ये मेरी फोर्स है F, राइट? और ये मेरी प्लस है, ये माइनस है, प्लस प्लस विल व्हाट? रिपेल। सो रिपेल करेगी, तो ये मैं ऐसे बना दिया F। पहला सवाल, क्या ये दोनों फोर्स सेम है? सर ये फोर्स दोनों सेम है। अब बोलोगे कैसे, क्यों? सर हैव अ लुक। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। ना तीनों में Q दे रखा है, डेफिनेटली सेम होगी, और दोनों की R स्क्वायर इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस तो आप हमेशा यहाँ पे रहेंगे सबकी A लेंगे, यहाँ पे रहेंगे सबकी A होगी। सो सारे के डिस्टेंस क्या है? A है,
राइट, सारे के डिस्टेंसेस क्या हैं, ए है, और इस तरह से आपको पता चलेगा कि हमारी जो फोर्स है वो कुछ ऐसा है। और इन दोनों फोर्स के बीच में फिर से आप रेजोल्यूट कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको एक ट्रिक भी बता सकता हूं, और वो ट्रिक ये है कि इफ दिस इज योर 60 डिग्रीज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स 60 डिग्रीज, this is definitely 120 degree and your resultant will definitely come out in this way. And what is the format of resultant? R is equal to under root of f square plus f square plus 2f f cos theta. थीटा क्या था? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, जो इस केस में 120 डिग्री है ना। बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो सर, तीनों एफ स्क्वायर आ जाएगी एंड यू कैन गेट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ एफ, नो इशू। बट मेरी एम ये नहीं है, राइट? मेरा एम है उसे कंपोनेंट में समझाना, राइट? उसे कंपोनेंट में कन्वर्ट करनी, राइट? हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू वेक्टर कंपोनेंट्स, दैट इज द मेन इशू। ओके, तो जब मैं वेक्टर कंपोनेंट्स के फॉर्म में तोड़ना चाहता हूं, तब देखते हैं ए के साथ आपने क्या किया। नाउ लुक एट दिस, ये देखना, बहुत आराम से देखना, इट्स क्वाइट सिंपल, राइट? पे अटेंशन, राइट? ओके, लुक एट दिस। तो ये मैं अपना एक्सिस ले लिया, सो दिस इज माई, तो इधर चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो दिस इज माई, सॉरी, सो दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस, नो प्रॉब्लम, दिस इज माई ओरिजिन। नाउ अब दोनों वेक्टर्स को निशान लगाते हैं, देखिएगा प्लीज। पहला वेक्टर ऐसा है जो 60 डिग्री बनाती हैं एंड दैट इज एफ। तोड़ देते हैं दो हिस्से में, एक ऊपर एक साइड में। जो एंगल के साथ है वो cos 60 है, जो एंगल के साथ नहीं है वो sin 60 है। सो देखिए दो पार्ट आ गई हैं आपकी। अब अगला जो फोर्स है वो सिंपली ये है, तो इसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, राइट? ऑलराइट, तो ये एक बात हो गई। अब ज़रा हम इसको इस फिगर के साथ रेजोल्यूट कर लेते हैं। ज़रा मुझे आप बताइए अब आप कि मेरी एक्स एक्सिस में क्या है। सो व्हाट अबाउट एक्स एक्सिस? अगर मैं एक्स एक्सिस को देखूंगा तो मैं ये लिखूंगा, मेरे एक्स एक्सिस में कुछ नहीं है, केवल एफ साइन थीटा है मेरे एक्स एक्सिस में। तो मैं केवल एफ साइन थीटा यूज करूंगा, एंड साइन थीटा इन द सेंस, इन दिस केस इट इज 60 डिग्रीज, एंड साइन 60 इज एफ √3/2, राइट? सो साइन 60 √3/2। अच्छा, जरा वाई एक्सिस के बारे में बात करिएगा प्लीज। इफ आई टॉक ऑफ वाई एक्सिस, सो व्हाट आई कैन से अबाउट वाई एक्सिस। नाउ वाई एक्सिस की बात करेंगे, होल्ड ऑन, मैं पहले एक्स एक्सिस किया, ओके, नहीं एक्स एक्सिस, जरा एक मिनट, आई हैव टू गो बैक। ना अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूं तो इट इज एफ और एक cos 60, f cos 60 is on this side, your minus f, so minus plus जो भी आएगा वो इंडिकेट कर देगा आपका साइन क्या है, ओके? एंड देयरफॉर यू कैन से दिस f टू बी एज क्या, cos 60 is nothing but half minus 1, and that will result in minus f. So that will result in minus f. You can change this, right, sign also. Okay, what about y axis? Right, what about y axis? एक्चुअली ये माइनस होना भी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं f cos 60 हमेशा डेफिनेटली छोटा होगा कंपेयर टू f. ओके, नाउ व्हाट अबाउट योर y एक्सिस, राइट? इफ यू टॉक ऑफ y एक्सिस तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं y एक्सिस की बात करता हूं तो लुक एट द फिगर, यू हैव गॉट ओनली वन थिंग एंड दैट इज नथिंग बट योर f sin 60 and f sin 60, and f sin 60 is √3/2. So my result is √3/2 f. So एक मेरी आंसर माइनस f है और f/2 है, और एक आंसर है मेरी √3/2. So these are the two forces, right? One on the x axis, another one on the y axis. इसका मतलब एक x axis में लग रही है, एक y axis में लग रही है। इंटरेस्टिंग बात, लास्ट बात है मेरी, and that is nothing but ये x axis में जो लग रही है फोर्स, जो मेरी x axis में लग रही है वो है f/2, that is on the this side,
you can say on this side or positive negative whatever it is, right? पहले समझ लेते हैं उसके बाद करते हैं, right? तो this is f by 2 on the another side, दूसरे वाला जो है y axis में जो है मेरे पास वो है ऊपर के तरफ और वो है ऊपर के तरफ, and that is root 3 by 2f. So this is in y axis and this is in x axis. So definitely सर ये जो रिजल्टेंट है ये बीच में से जाएगी और ये जो बीच में से जाएगी ये जो होगी ये क्या होगी, आपस में 90 डिग्री बनी हुई है, तो मेरी रिजल्टेंट r इज़ नथिंग बट अंडर रूट ऑफ this, that is your f in the x axis square plus f in the y axis square, and that is equal to under root of root 3 by 2 f का square plus f by 2 का square. So ये हो गई मेरी बात, right? Now you can very easily solve it and you can get the result of it. Okay? So इसको आप इसको solve कर सकते हो और solve करके इसका आंसर निकाल सकते हो. And if you look over here, so what do you get? So I get actually under root of 3f square by 4 plus f square by 4. So if you see very carefully, this becomes 3 plus 1 and that is 4. 4 cancels out and you get f. So fine. तो ये एक बात हो गया हमारा फाइनल आंसर के बारे में, and that is nothing but your ये जो फिगर थी हमारी उस फिगर की रिजल्टेंट आ गई. ओके तो this is what is your resultant and which is right, which we have got now, and that comes out to be f in this direction. Okay, so ऐसे ही similarly b के लिए भी कीजिए और आप c के लिए भी कीजिए, exactly in the same way, same process, right? अगर आप formula use करेंगे directly, you can use this formula. If you want to use a formula for this, you can use this. Look at the two vectors, get the angle and get the result. और नहीं तो फिर go with the resolution of vectors जो मैंने आपको भी समझाया, right? Okay, then see you in the next session, right? We'll continue with this problem in the next session also, right? इसको अच्छी तरह से पढ़िए, हमारे वेबसाइट्स में सारे इसके नोट्स अवेलेबल है, आप नोट्स वहाँ पे जाके हमारे नोट्स को भी आप देख सकते हो, right? So ठीक है, we'll continue in the next session. Thank you.